I'm not using two languages. I'm using single language, and Google Meet is very comfortable by English only if anybody is using English only. But if we use double languages, Google Meet get confused and it types blah blah blah. So in this condition, we need to see plus listen balance. We need to keep the balance between listening and watching. You cannot 100% believe on your watching. You should sometimes believe your listening. As you are watching, whatever I am speaking is coming here absolutely correctly. Right or wrong, Rupalji? Okay, sir. Yes. Right. So Google Meet is a program. So any program is having some minus points. So this program is also having one minus point. In this situation, we are human, we should take sometimes the help of our eyes or sometimes the help of our ears. We need to keep the balance between watching and listening. We cannot 100% believe on watching, we cannot 100% believe on listening. So this balance is adopted by Nidhi. She is not getting any problem. And this balance is adopted by Namrata and Roshni and Shivang and Deepika. But because you are new, actually you are not exactly new. You discontinued. That's why you are getting problem. So guys, I want to inform everybody, if you discontinue this class, if you bunk this class, you will have some problems. So, there is one more thing. One more facility is available in this class. Every class is being recorded. So if you get any emergency condition in your life, so please watch the video recording of that day. And if you have not subscribed to my channel, you need to subscribe. I'm sorry to say Rupal ji is unmute. So sometimes if two mics are on, the voice quality or the typing quality gets disturbed. As you are watching Rupal ji, you can watch everybody's window. The right side of the window, you can see Roshni is mute. You can see here Nidhi is mute. You can see here Neha is mute. You can see Namrata is mute. Shivang is not visible, but he is mute. You can see right side, top side of Deepika, mute. One microphone sign is available there and one cross is available there. Means these all guys are mute. Only I am unmute. So every program is having some restrictions. हर कार्यक्रम के कुछ तो अपने सीमाएं होती हैं. तो ये जो प्रोग्राम है ये भी मानव निर्मित प्रोग्राम ही है. इसकी अपनी सीमाएं हैं. अब जब मैं बोल रहा हूँ इस दौरान आपको सीसी देखना ही नहीं चाहिए. उंगली बढ़ा के आपको चाहे तो अपना सीसी ऑफ भी कर सकते हैं. इस दौरान कर लेना चाहिए. And sometimes CC does not appear. This is technical fault. जैसे right now my CC is on, but it is not appearing on my screen. मेरा CC चालू है लेकिन स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा है. I tried twice or thrice switching it off, switching it on, switching it off, switching it on, but the captions are not coming.
So these are the little minus points of online classes, but I hope Deepika is not facing it. Right, Deepika? Now you are not, you are habitual of it. You can just do not give yes. You can just nod your head. You can just nod your head. Namrata, now are you comfortable with this Google Meet? Neha, are you comfortable? Nidhi, are you comfortable? Roshni, are you comfortable? Shivang, are you comfortable? Yes. Rupalji, you are new, that's why you are not comfortable. But if you regularly attend the class, you will automatically be comfortable. And the same thing happens in life. Sometimes or other, we have to do something new in our life. And we get used to it. So I wanted to tell you this thing. This is very important, Rupalji. दोस्तों, मान लीजिए हमने यहाँ से शुरुआत की है आपकी बैच की, तो यहाँ से कभी कभी मैं तेज गति से बहुत आगे जाऊंगा, फिर मैं वहां पुनः वापस आऊंगा, फिर यहाँ से आगे बढ़ूंगा, फिर आगे चलूंगा, फिर यहाँ वापस आऊंगा, फिर यहाँ से आगे बढ़ूंगा, फिर ऊपर तक आपको ले जाऊंगा। ऐसा बारंबार होगा। ये बताने का उद्देश्य ये है कि अगर कोई बंदा मिस करता है क्लास या उसको कोई चीज समझ में नहीं आती है, वीडियो भी देख लेता है उसके बाद भी नहीं आती है, तो भी वो चिंता ना करे। हम बारंबार अपने बेस कैंप में लौटेंगे। वी विल बी बैक टू आवर बेस कैंप अगेन एंड अगेन। तो हम अब वहां उस गति से आगे बढ़ेंगे। रूपल जी, जहाँ पे ये जो रेगुलर लोग हैं, रूपल जी, ये निवेदन आप ध्यान से सुनिएगा। दीपिका इज सो रेगुलर, Namrata is so regular, Roshni is so regular, Nidhi is actually a little old student, so her regularity or irregularity does not make any matter. It does not make. Neha is not regular and she is new student. She will get some losses. Shivang is old student. He knows everything properly, but basic things. He will continue as his data pack supports him. Nidhi will continue as her data pack supports him. रोशनी भी तब तक जारी रखेंगी जब तक उनका डेटा पैक उनका साथ देता है। समटाइम्स आप शायद इस बात को सभी लोग नहीं समझ सकते, जो कि कुछ लोगों के पास लिमिटेड डेटा होता है और वो खत्म हो जाने के बाद वो अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो हम वहां से आगे बढ़ते हैं जहां पे दीपिका, नम्रता या अन्य लोग हैं। दीपिका, क्या कल मैंने कोई इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था? वो सर कैन की प्रैक्टिस कर रहे थे। ओके, चलिए, तो आज मैं आपको ना वर्ब लिखवा रहा हूँ, ना कोई इंटरेक्टिव, ना इडियम। आज हम एक पायदान और आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा, सभी से सुनिएगा। दोस्तों, जब आप यहाँ मौजूद रहते हैं इस क्लास में फिजिकली, भौतिक रूप से, तो आपको वो व्यवधान नहीं आते हैं जो आपको घर में बैठ के आ जाते हैं। जैसे आप में से पता नहीं किसी ने नोटिस किया या नहीं, बीच में निधि के बच्चे ने थोड़ी सी आवाज लगाई थी तो निधि का ध्यान वहां गया, लेकिन फिर उसने अपने आप को कंट्रोल किया और अपने प्रश्नोत्तर को जारी रखा। रोशनी जो है वो भी मैरिड है, तो बच्चे बीच बीच में, और अगर आप अपने ससुराल में हैं तो बहुत मेंटेन करना होता है, ये मैं समझता हूँ और मैं आपका इस मामले में बहुत तारीफ करूंगा। रूपल जी, मैंने अभी एक दो बार नोटिस किया
कि कोई ना कोई आपके रूम में आता है और आपको संबोधित करता है, आपका ध्यान तुरंत उस तरफ चला जाता है। इसलिए मैंने साफ साफ शिवांग को कठोर भाषा में बोला था कि जो विजिबल ना हो उससे सवाल ना पूछें, क्योंकि उसका ध्यान कहीं और हो सकता है। उसने किसी और कार्य को करने के लिए अपनी कैमरे को बंद कर लिया है। तो हमने कभी हाईवे पे या कहीं ना कहीं सड़क के किनारे लिखा देखा होगा, यातायात वालों का कोटेशन है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। थैंक यू शिवांग। तो मेरा निवेदन है कि इसको समझें, अप्लाई करें। हम एक पायदान आगे बढ़ रहे हैं और मैं सभी को एक एक करके, दोस्तों किस में आगे बढ़ रहे हैं ये भी सुन लीजिए। हमने चंद दिनों पहले ही अपना चैप्टर कैन शुरू किया। अब हम इसका परीक्षण भी करते हैं। दीपिका आप बताइए, हमने पहला राउंड कैसे खेला था कैन चैप्टर में? गेम्स का खेला था सर। ओके, नम्रता जी आप बताइए। आय था। थैंक यू आय। दीपिका। हमने आई का भरपेट राउंड खेला, हम सबने आई लगाया। नम्रता जी दूसरा राउंड? सर नॉन लिविंग थिंग्स का। गलत जवाब है। शिवांग सर बताइए। सब्जेक्ट चेंज करके। हाँ, हमने अलग अलग सब्जेक्ट यानी अलग अलग कर्ता रखे, भिन्न भिन्न। आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी कर्ता रखी, उसके लिए धन्यवाद। अब मैं पूछूंगा शिवांग से, तीसरा राउंड का खेला था? सर नॉन लिविंग, इट्स नॉन लिविंग थैंक सब्जेक्ट। यू। नॉन लिविंग को हिंदी में क्या कहते हैं, रोशनी बताए। निर्जीव कर्ता। कम अगेन प्लीज बेटा। सर निर्जीव कर्ता। बिल्कुल, थैंक यू। निर्जीव कर्ता रखे हमने। हमने दोस्तों आपसे निवेदन किया था कि आप कुछ सेंटेंसेस बना के भेजिएगा, मैं चेक करूंगा। लेकिन मैंने चेक किया तो आपने एक भी नहीं भेजा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। ये एक वाक्य मैंने लिखा हुआ है, ये मैं आपसे बोल नहीं रहा हूं, केवल वाक्य है। सबसे पहले मैं नेहा से पूछूंगा। नेहा, इस वाक्य को बनाने के लिए बेटा पहली चीज हम क्या लेंगे? सर यू। थैंक यू नेहा। म्यूट योरसेल्फ। रोशनी बेटा आप बताइए क्या लेंगे? सर सब्जेक्ट। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा मेरे कानों को ये जवाब सुन के, सब्जेक्ट। दीपिका, आपने अगर प्रसाद ले लिया हो तो बताइए सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? सर करता। सर कर्ता नहीं कहते, सर करता। कर्ता कहते हैं। इतना बस बोला करो। प्रसाद खा लो। शिवांग, इस वाक्य में कर्ता कौन है? सर इस बात में करता आप है। हाँ, थैंक यू। नम्रता, आप। आपका अंग्रेजी शब्द क्या है? सर आपका अंग्रेजी शब्द यू है। अब निधि बताएगी, जो इतनी देर से धैर्य के साथ वहां बैठी हुई है। निधि, दूसरे नंबर पे हम क्या लेंगे? सर दूसरे नंबर पर हम कैन कैन थैंक यू। इस बार हम नेहा से पूछेंगे। नेहा बेटा दूसरे नंबर पे हम क्या लेंगे? सर क्रिया लगाएंगे। थैंक यू नेहा। रोशनी, आप बताइए दूसरे नंबर पे क्या लेंगे? सर कैन। थैंक यू। दीपिका आप बताइए दूसरे नंबर पे क्या लेंगे? सर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे जो कि कैन बस है। बस 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 बस, इन लोगों से और पूछना है अभी मुझे। थैंक यू। हेल्पिंग वर्ब लेंगे। शिवांग, हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? तो सहायक क्रिया कहते हैं हेल्पिंग को। नम्रता जी, सहायक क्रिया किसे कहते हैं? सर जो कर्ता की सहायता करती है सहायक क्रिया कहते हैं। थैंक यू। बेटा नेहा, इस चैप्टर में सहायक क्रिया कौन सी है?
सर गो। थैंक यू। निधि तुम बता दो। सकते, that is can. नम्रता, क्या जिस दिन से क्लास से हुए नम्रता और दीपिका, क्या मैंने कभी आपसे बोला कि ये स्पोकन की क्लास है और स्पीकिंग के दौरान अगर आप लिखते रहते हैं कुछ कुछ, तो क्या वो आपके लिए खतरनाक है? ऐसा कुछ बताया था? क्या बताया था? पहले नम्रता अपने शब्दों में बताए, फिर दीपिका अपने शब्दों। सर आपने कहा था कि ये बार बार हम रिपीट करेंगे तो जरूरत नहीं है लिखने की। थैंक यू ये नम्रता। 27 दीपिका। सालों से करते आ रहे हो तो। हाँ, थैंक यू नम्रता। दीपिका। सर मेरे को तो काफी कुछ कहा था, क्योंकि मैं बहुत लिखती हूँ। तो आपने मना किया था कि कॉपी एक हफ्ते तो बंद कर दो पहले। हम्म, और एक कहावत भी बोली थी आपने। इरशाद, बताओ। अभी क्या था? कॉपी भर भर जगमुआ, ऐसा करके कुछ था। अच्छा, ये दोहा है बेटा, कहावत नहीं है। ये दोहा कौन बताएगा? बताओ शिवांग। रजिस्टर भर भर जगमुआ, अंग्रेज भय न कोई, दो अक्षर प्रेम के, बोल तो अंग्रेज होए। थैंक यू शिवांग। इसको थोड़ा सही करके रोशनी बताएगी। रोशनी शर्मा गई, तुम्हारी खिड़की बंद हो गई। बाकी रोशनी, तुम्हारी इसमें जो तस्वीर लगी हुई है वो बहुत अच्छी लग रही है। इट्स ब्यूटीफुल। चलिए, ओके 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 ओके। रोशनी को नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, आ गई। तो एक्चुअली ये पूरा संबोधन रूपल जी आपके लिए है। मुझे लग रहा है कि आप नीचे धीरे धीरे कुछ लिख रहे हैं और लिखने में ध्यान गया। तो जो मुख्य चीजें हैं, जो चूंकि फिर से एक गुरु मंत्र सुन लीजिए सबसे पहले। तो रूपल जी, आपका देर से आगमन हुआ है इस क्लास में। अच्छे वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता होना जरूरी है और कुछ जरूरी नहीं। अच्छे वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता होना जरूरी है और कुछ जरूरी नहीं। और इस क्लास की प्रोसेस जो है, प्रक्रिया जो है, वो जो आप जिस भी शिक्षा पद्धति से गुजर कर यहाँ तक पहुंची है, उसकी जस्ट अपोजिट है। अंग्रेजी में कोई वो शब्द बोल के बता सकता है? अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन। थैंक यू वेरी मच। अपसाइड डाउन। इसका मैं वीडियो आपको सेंड करूंगा। एक विज्ञापन है किसी मोबाइल का। तो अगर आप लिखते रहेंगे तो आपकी एकाग्रता लिखने की ओर चली जाएगी और जो समझाया जा रहा है, जो बोला जा रहा है, वो आप सुन नहीं पाएंगे। और मेरा एक निवेदन है, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि अगर आपके मोबाइल की वॉइस कम है तो आप उसको ब्लूटूथ नाम के डिवाइस से अटैच कर सकते हैं। छोटे छोटे ब्लूटूथ स्पीकर 100-150 रुपए के ऑनलाइन उपलब्ध हैं। आप मोबाइल को ब्लूटूथ से टच कर दीजिए तो आपके स्पीकर इधर उधर जहां आपकी मर्जी वहां रख दीजिए, तो जो भी बोला जा रहा है वो बहुत जोर जोर से सुनाई देगा। आपको ईयरफोन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो लोग समृद्ध हैं, जो लोग तुरंत ऐसे टच करके खरीद सकते हैं, वो जरूर इसका उपयोग करें और बाकी लोग अपने ईयरफोन का प्रयोग करते रहें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेहा, चलिए रूपल जी से ही पूछते हैं। रूपल जी, तीसरे नंबर पर हम क्या लेंगे?
सर गो रूपल जी, यू आर नॉट विजिबल, नाउ यू आर विजिबल। गो थैंक यू रूपल जी, म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। नेहा, तीसरे नंबर पर हम क्या लेंगे? सर गो। थैंक यू। रोशनी, तीसरे नंबर पर हम क्या लेंगे बेटा? सर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। थैंक यू रोशनी, थैंक यू वेरी मच। क्रिया का पहला रूप। रूपल जी ध्यान से सुनिएगा, आप दिखाई नहीं दे रहे इसलिए मुझे बार बार आपका नाम पुकारना पड़ता है। दीपिका, इसमें क्रिया कौन सी हो रही है बताओ? जाने की क्रिया हो रही है सर। थैंक यू। नम्रता जी बताइए, जाने की क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर गो। थैंक यू नम्रता जी। रूपल जी क्या आप मौजूद हैं? अगर हैं तो दिखाई दीजिए ताकि मैं आपसे दो बातें कर सकूं, और जब तक आप कुछ बोलेंगी नहीं तो स्क्रीन पर नहीं दिखाई देंगी। रूपल जी, आर यू देयर? ओके, दिस इज एक्चुअली द प्रॉब्लम गाइस। कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा नेहा बताओ बेटा, इंग्लिश में 4 लेटर है, इंग्लिश में 3 ही आए, सेंटेंस पूरा हो गया कि अभी अधूरा है? अच्छा, नेहा को भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, कोई बात नहीं। रोशनी बताओ, सेंटेंस अधूरा है कि पूरा हो गया? सर पूरा हो गया। वेरी नाइस, सही जवाब। दोस्तों अब जो आप सेंटेंस सामने बोर्ड पर देख रहे हैं उसको व्याकरण की भाषा में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। दीपिका क्या कहते हैं इसे? सर ट्रांजिटिव वर्ब, सकारात्मक वाक्य। हाँ, यही सवाल आप किसी और से पूछिए। नम्रता, ऐसे सेंटेंसेस को क्या कहते हैं? इस सेंटेंस को सकारात्मक वाक्य कहते हैं। शिवांग, ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं? ऐसे वाक्य को सकारात्मक वाक्य कहते हैं। सकर्मक। सकारात्मक वाक्य कहते हैं। दीदी दीदी, ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं? सकारात्मक। सकारात्मक वाक्य कहते हैं। दीपिका म्यूट योरसेल्फ। शिवांग, ऐसे वाक्यों को सकारात्मक वाक्य कहते हैं। रोशनी, ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं? ऐसे वाक्य को सकारात्मक कहते हैं। नेहा, ऐसे ऐसे वाक्य को क्या बोलते हैं? रूपल जी, ऐसे वाक्य को क्या बोलते हैं? हु इज रेस्ट? ओके, मैं ही जवाब दे देता हूँ। ऐसे वाक्यों को सकारात्मक वाक्य कहते हैं। रूपल जी को या तो टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई या घरेलू समस्या आ गई, और नेहा की पता नहीं। दीपिका, दूसरा राउंड शुरू करते हैं। व्हाट इज द वर्ड फॉर सकारात्मक? अभी मैंने दिखाया था। The word for सकारात्मक sentence is affirmative sentence. थैंक यू। आस्क द सेम क्वेश्चन। Namrata, what is the word for सकारात्मक sentence? The word for सकारात्मक sentence should be affirmative. सॉरी, नम्रता Affirmative sentences.
affirmative Didi, sentence. Deepika Didi, you got 20 D. You help. You got 20 D. चलो अभी नहीं लेते हैं, आगे बढ़ो। अरे मैंने हेल्प भी नहीं की। कोई बात नहीं। Sivang, what word should use for सकारात्मक? Didi, come again, please. Your voice is choking. What is the word for सकारात्मक? The word for sakaratmak is affirmative. Nidhi Didi, what is the word for sakaratmak? Shivang, the word for sakaratmak is affirmative. Who is rest? Sorry, Rosni, what is the word for sakaratmak? The word for is affirmative sentence. Sorry, come again. The word for is affirmative sentence. बेटा हमारे साथ बोल दो, द वर्ड The word फॉर for सकारात्मक सकारात्मक इज is अफर्मेटिव। affirmative. The word for सकारात्मक is affirmative. अब एक बार नेहा से पूछ लो, भले ही वो जवाब ना दे। नेहा, what is the word for सकारात्मक sentence? The word for sakaratmak is affirmative. थैंक यू नेहा। रूपल जी इज रेस्ट। Rupal ji, what is the word for sakaratmak sentence? The word is sakaratmak is affirmative. अब आप शिवांग से पूछ लीजिए रूपल जी। Shivang, what is the sir question नहीं मालूम। इस बार दीपिका एक एक लेटर बुलवाओ, केवल इंग्लिश में। What? What Repeat after me. Is. what What is is the word what is the word for for सकारात्मक? sakaratmak? What is the word sakaratmak? For सकारात्मक. What is the word for sakaratmak? Didi, the word for sakaratmak is affirmative. थैंक यू। दोस्तों, आज हम दूसरी पायदान पर कदम रखते हैं। चलिए दूसरी सीढ़ी पर चढ़ते हैं। और ये जो सीढ़ियां हैं, ये है वाक्य के प्रकारों की। वाक्य के प्रकार में हम आगे बढ़ते हैं। आप चाहे तो गिन सकते हैं, सामने एक फ्लैक्स लगा हुआ है यानी मेरे पीछे, लेकिन आप नहीं भी गिनेंगे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आज हम दूसरे प्रकार का वाक्य बनाना सीखने जा रहे हैं और इसका जो नाम मैंने यहाँ पे प्रिंट है, सर आप देख रहे हैं बोल्ड लेटर्स में, वो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन आगे चलकर आप उस पर विश्वास करेंगे और उसको बेहतर समझ भी पाएंगे।
तो दूसरा प्रकार है इन्वर्टेड सेंटेंस। आपको इसको ना रटना है, ना घोटना है, न लिखना है। मैं आपसे इतनी बार आगे चल के इसका जिक्र करूंगा, आपसे पूछूंगा कि आपसे धीरे धीरे मुंह से निकलने लगेगा। एक बार दीपिका ये बोल दो। इन्वर्टेड किसी और का सेंटेंस। नाम ले लो। शिवानी। इन्वर्टेड सेंटेंस। नम्रता दीदी। इन्वर्टेड सेंटेंस। निधि। Inverted sentence. रोशनी। इन्वर्टेड सेंटेंस। नेहा। Inverted sentence. रूपल जी। Inverted sentence. Anybody else? दोस्तों, इन्वर्टेड सेंटेंस के बारे में हम 3 बिंदु आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। पहला बिंदु है कि इन्वर्टेड सेंटेंस कहते किसे। इसको केवल सुन लीजिएगा, और अगर एक बार में ना सुनाएंगे तो कम आगे जरूर बोलिएगा। हम किसी एक से दोहरा रिपीट करवा देंगे। ऐसा कोई भी वाक्य जिसके पूरी दुनिया में केवल 2 ही जवाब हो, या तो हाँ या ना, उसे इन्वर्टेड सेंटेंस कहते हैं। और चूंकि दीपिका का नेटवर्क सबसे अच्छा है, तो हम दीपिका से रिपीट करा रहे हैं। दीपिका, इन्वर्टेड सेंटेंस किसे कहते हैं? ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसका केवल 2 ही उत्तर होता है, या तो हाँ या तो ना, इन्वर्टेड सेंटेंस कहलाते हैं। अब इस दौरान मैंने एक वाक्य लिख भी दिया है। रूपल जी, इसको पढ़ के बताइए अगर आप देख सकती हैं तो। रोशनी जी, आप पढ़ के बताइए। हेलो। रूपल जी रिस्पॉन्ड नहीं हेल कर रही हैं। हेल क्या आप जा सकते हैं? नेहा, बताओ इस सवाल के कितने जवाब होंगे दुनिया में? क्या आप जा सकते हैं? और सर मैं सुना नहीं, प्लीज। कोई बात नहीं बेटा, नम्रता जी बताएंगे। नम्रता जी, आप बताइए। सर, इस वाक्य के 2 जवाब हो सकते हैं, हाँ या ना। सर, थैंक पूरा यू। उत्तर देना निधि, है। एक बार आप दोहरा दीजिए। सर, इसके केवल 2 जवाब हो सकते हैं, या हाँ या ना। ओके। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों। इन्वर्टेड सेंटेंस की पहचान क्या होती है? आप किसी हिंदी वाक्य को कैसे पहचानेंगे कि वो इन्वर्टेड है? तो उसकी पहचान यहाँ सामने दिखाई दे रही है। जिसकी स्टार्टिंग में क्या लगा हो, जिसकी शुरुआत में क्या लगा हो, उसे इन्वर्टेड सेंटेंस कहते हैं। रोशनी बेटा, इन्वर्टेड सेंटेंस किसे कहते हैं? सर, जिसके 2 वाक्य हों, हाँ या ना। थैंक यू। नेहा। सर, जिसके दो दो वाक्य हो, 2 थैंक ही यू। जवाब, हाँ या ना। वेरी नाइस। रूपल जी, आप? जिसके 2 जवाब हो, हाँ या ना। थैंक यू। दीपिका। जिसके शुरुआत में क्या शब्द आता हो। थैंक यू। सही जवाब। अब दीपिका, आप यही सवाल नम्रता जी से पूछिए। नम्रता जी शिवांग से पूछेंगी, शिवांग निधि से, फिर आगे बढ़ेगा। किससे पूछना है फर्स्ट? नम्रता नम्रता। जी। इन्वर्टेड सेंटेंस की क्या पहचान होती है?
दीपिका, इन्वर्टेड सेंटेंस की हिंदी में क्या पहचान होती है? मीन्स यदि सेंटेंस के सामने क्या लगा हो तो यह उसकी पहचान है। शिवांग, हिंदी शब्द में, हिंदी सेंटेंस में इन्वर्टेड की क्या पहचान है? दीदी, जिस सेंटेंस के आगे क्या लगा हो वो इन्वर्टेड सेंटेंस होता है। निधि दीदी, इन्वर्टेड सेंटेंस की पहचान क्या होती है? शिवांग, जो सेंटेंस क्या से शुरू होता है उसे इन्वर्टेड सेंटेंस कहते हैं। रोशनी, इन्वर्टेड सेंटेंस की क्या पहचान होती है? जिसकी शुरुआत में क्या आता हो उसे जिसकी शुरुआत में क्या आता हो उसे इन्वर्टेड सेंटेंस कहते हैं। नेहा, इन्वर्टेड सेंटेंस की क्या पहचान होती है? जिसकी शुरुआत क्या से शुरू होती है उसे इन्वर्टेड सेंटेंस कहते हैं। रूपल जी, इन्वर्टेड सेंटेंस किसे कहते हैं? जिस वाक्य के शुरुआत में क्या का उपयोग किया जाता है उसे इन्वर्टेड सेंटेंस कहा जाता है। इसको थैंक यू, धन्यवाद। शिवांग इज रेस्ट। शिवांग, इन्वर्टेड सेंटेंस भूल जाती हूँ मैं। कोई बात नहीं। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं, लेकिन याद रखिएगा जैसे हम किसी भी हिंदी भाषा में, हम लोग जब सब हिंदी मीडियम के लोग हैं, और दोस्तों जैसे ही मैं बोलता हूँ हम लोग, तो मैं अपने आप को भी उसमें शामिल करता हूँ, क्योंकि मैं भी थ्रू आउट हिंदी मीडियम का ही विद्यार्थी। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हिंदी वाक्य के शुरू में क्या देखते हैं, सबसे पहले उचक के क्या लगाते हैं? वाट लगा देते हैं सर। और क्या लग जाती है? वाट। बोलो भारत माता की। नहीं। तो दोस्तों एकदम से क्या नाम का शब्द देखते ही वॉट नहीं लगाने का। मिसेस से बोलिए ब्रश नहीं लगाने का। टाइट है तो वाइट है। कॉलर अगर गंदी है कॉलर तो ब्रश नहीं लगाने का। टाइट है तो वाइट है। टाइट की चमकदार सफेदी। रूपल जी, क्या केवल स्वास्थ्य की समस्या आड़े आ रही है कि नेटवर्क भी आड़े आ रहा है, या घर के सदस्य क्या समस्या चल रही है? रूपल जी बताएं। अगर जरूरी नहीं है उत्तर देना, नहीं लेकिन सर, नेट की प्रॉब्लम है। केवल नेट की है। सर मैं नीचे हॉल में थी तो बहुत ज्यादा नेट की प्रॉब्लम इशू आ था, तो मैं ऊपर आके बैठी हूँ, फिर भी नेट का इशू आ रहा है। आप मोबाइल डेटा प्रयोग करती हैं या आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है? वाईफाई। तो वाईफाई तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। वही सर, पता नहीं क्या मालूम आज क्यों प्रॉब्लम आ। मोबाइल का जो ऊपर वाला हिस्सा है, जहां से हम ऐसे लगा के सुनते हैं, आप उसको उस दिशा में रखिए। अपनी सेटिंग को थोड़ा बदलिए जहां पे आपका मॉडेम लगा हुआ हो। और अगर मॉडेम इसी के ऊपर नजदीक बैठेंगी तो एकदम क्लियर आएगा। मॉडेम के नजदीक बैठेंगे, वो जो डिब्बा होता है ना, अगर आप उसके जितने नजदीक बैठ सके, कोई दीवार दरवाजा भी डिस्टर्ब करता है। अगर कोई दरवाजा है, दीवार है, तो उससे रुकता है। नहीं सर, पूरा ओपन है। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, वो आपके लिए तो जरूरी नहीं है, मेरा काम है इसलिए मैंने करके रखा है। आप ये देखिए, हमारा मॉडेम ऊपर छत पे रखा है, लेकिन हमने एक
एक्सटेंडर लगा के देखिए, एक एक्सटेंडर यहाँ रखा हुआ है जो कि बिजली से कनेक्टेड है, क्योंकि मेरा जो मॉडेम है, जो मूल डिब्बा है, वो ऊपर की तरफ लगा हुआ है, यहाँ से काफी दूर है। तो अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने ये एक्सटेंडर प्रयोग किया हुआ है। तो मेरी तरफ से तो नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं होती है, और मेरे नेटवर्क की स्पीड बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई स्पीड लेके रखी, क्योंकि ये मेरी रोजी रोटी है। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आपके नेटवर्क से ही कहीं समस्या हो सकती है, और कई बार बहुत बारीक समस्या होती है जिसका हल बहुत आसान होता है। तो वो आपके बच्चे लोग उसके लिए मदद कर सकते हैं। आप जैसे क्लास ज्वाइन करें तो सबसे पहले आपके मोबाइल में कई बार पीछे बहुत सारे ऐप चलते रहते हैं, उनको एक क्रॉस का निशान आता है, उसको सबको क्रॉस कर दें, सब पीछे से बैकग्राउंड में जो है सब साफ हो जाएगा। और आपके मोबाइल में एक स्पीड बढ़ाने वाला एक ऐप भी होता है, उसको आप दबा दीजिए, जो कचरा है वो सब साफ हो जाता है। और याद रखिएगा, अगर आपके मोबाइल की बैटरी लो है तो भी नेटवर्क कम मिलेगा। ये 2-3 कारण हैं, इस पर ध्यान दीजिए। अब हम तीसरे बिंदु पर आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इन्वर्टेड सेंटेंस बनाने का मैं नियम बता रहा हूं, जो आपको, जो अंग्रेजी पहले से जानते हैं उनको हजम नहीं होगा। तो अगर वो हजम ना हो तो वो किराने की दुकान से हाजमोला लेकर खा लेना, आपको बाद में जाके हजम होगा। सुनिएगा, सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द को उठा के सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं तो इन्वर्टेड सेंटेंस बन जाता है। दीपिका, इन्वर्टेड सेंटेंस कैसे बनता है बेटा? सब्जेक्ट के बाद वाले वर्ड को सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं तो इन्वर्टेड सेंटेंस बन जाता है। थैंक यू दीपिका। आप रोशनी से पूछ लीजिए। रोशनी, रोशनी, रोशनी मौजूद है, आप पूछ लीजिए, वो जवाब देगी। ये दिक्कत इन्वर्टेड सेंटेंस कैसे बनते हैं? सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द को उठाकर उसके पहले रख देते हैं। शिवांग सर, राउंड शिवांग से शिवांग पूछ के समाप्त करते हैं। शिवांग, इन्वर्टेड सेंटेंस कैसे बनते हैं, कैसे बनाते हैं? दीदी एक काम करो, सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द को उठाओ, सब्जेक्ट के आगे रख दो, बन गया इन्वर्टेड सेंटेंस। रूपल जी, आप इस बच्चे को हमेशा ध्यान से देखिएगा, ये एंजॉय करता है और आप स्ट्रेस लेते हैं। हम लोगों के साथ ये है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हम समझदार तो होते जाते हैं, लेकिन हम चिंता करना सीख जाते हैं, स्ट्रेस लेना सीख जाते हैं। आप देखिए, निधि के चेहरे की तरफ देखिए, भले ही लाइट कम है, वो बहुत हंसती मुस्कुराती नजर आएगी, और शिवांग पूरे समय मुंह बनाता हुआ एंजॉय करता है, लेकिन जवाब बिल्कुल 100% देता है। तो एंजॉय आप नहीं करेंगे इस क्लास में, परिणाम इफेक्टेड होंगे ही, रिजल्ट्स विल बी sacrificed. Enjoy. Stress मत। नितिन बेटा, तुम्हारा माइक ऑन है, आप कर लो। निधि, mute yourself. Thank you. अब रूपल जी, उस नियम को यहाँ पे लागू कीजिए और इस सेंटेंस को इन्वर्टेड बनाइए। मैं रूपल जी से निवेदन कर रहा हूँ और किसी से नहीं। Yes, sir. Can you go? Wow, put your hands together for रूपल जी। बहुत सही, बिल्कुल सही,
बन गया। देखिए मुस्कुराने का ये फायदा होता है। सो कीप स्माइलिंग। अब हम पहले सिंपल राउंड खेलेंगे रूपल जी को मद्देनजर रखते हुए। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आंसर दीजिएगा। दीपिका, आपको केवल यस में आंसर देना है। सेम क्वेश्चन सेम आंसर, किसी को नहीं बदलना है। फर्स्ट राउंड है इसलिए। दीपिका जी, कैन यू गो? यस सर। शिवांग, कैन नो यू नो गो? नो, केवल यस सर नहीं, आंसर तो पूरा देना है लेकिन यस में देना है। कैन यू गो? यस सर। यस सर, आई कैन गो। क्या आप जा सकती शिवांग, हैं? कैन यू गो? हाँ सर, मैं जा सकती हूँ। अब पूछिए। शिवांग, कैन यू गो? यस, आई कैन गो दीदी। शिवांग, क्या आप जा सकते हाँ, मैं हैं? जा सकता हूँ दीदी। नम्रता दीदी, कैन यू गो? यस शिवांग, आई कैन गो। नम्रता दीदी, क्या आप जा सकती हैं? हाँ शिवांग, मैं जा सकती हूँ। निधि, कैन यू गो? यस नम्रता, आई कैन गो। निधि, क्या आप जा सकती हैं? हाँ नम्रता, मैं जा सकती हूँ। रोशनी, कैन यू गो? यस, आई कैन गो। रोशनी, क्या आप जा सकती हैं? हाँ, मैं जा सकती हूँ। नेहा, कैन यू गो? यस आई कैन गो। क्या आप जा सकती हैं? हाँ मैं जा सकती हूँ। रूपल जी, कैन यू गो? यस आई कैन गो। रूपल जी, क्या आप जा सकती हैं? हाँ मैं जा सकती हूँ। सर, सर कैन यू गो? स्पीक अप, कम चलिए अगेन वॉइस प्लीज। नहीं आ रही है। सर कैन यू गो? Yes, yes. Why not, Rupal ji? I can go. Time is up. क्या? दीदी, शिवांग बोल सर दो। वॉइस नहीं आ रही है। शिवांग कुछ तो कंप्लीट द बोल रहा है। प्रोसेस रूपल जी। थैंक यू निधि, थैंक सर यू, थैंक यू। वॉइस नहीं। हाँ कुछ दोस्तों, पूछिए आपसे। ये लकीर की फकीर की तरह राउंड हो गया और ये इस क्लास का तरीका कतई नहीं है। कल खेलेंगे हम धुआंधार राउंड, अलग अलग वर्ग खेलेंगे, कम से कम 10 राउंड खेलेंगे कल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कुछ वर्ड्स तो मैंने लिखाई हैं और कुछ हमारे घर में किचन में ड्राइंग रूम में आसपास मौजूद रहती है। और आप कोई भी वर्ब पहले से नहीं रट सकते, ये आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आप कोई वर्ब सोच के बैठेंगे वो कोई और यूज कर देगा, आपको कोई और यूज करना पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं विराम देता हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अपने नेटवर्क को सुधारने के लिए अपने बच्चों की नाते पोते जो भी हो, भतीजे भतीजी या पड़ोसी बच्चों की मदद लीजिए। ये बच्चे बहुत एक्सपर्ट होते हैं, आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। अन्यथा YouTube में जाइए और टाइप कीजिए कि मुझे ये समस्या आती, क्या समाधान है, लाइन लग जाएगी, वीडियोस ही वीडियोस। I hope you will get better network and better attention. Thank you. God bless you. Shabba khair.